So first up, let's talk about the India bloc that has overcome a significant hurdle, that is seat sharing. The bone of contention that is gone, and how both the Congress and the Samajwadi Party plan to put up a joint show as far as Priyanka Gandhi Vadra being missing from this Congress's flagship yatra is likely today to join her brother Rahul in Moradabad. Akhilesh Yadav, however, maintains since the alliances have been staged and the seats have been distributed, he will attend the Nyaya Yatra in Agra on the 25th of Feb. All is well, they say, but there are still rumblings within the Congress over the deal over seat sharing. The Bharat Jodo that will commence from Moradabad and travel through Fatehpur Sikri via Amroha, Sambhal, Bulandshahr, Aligarh, Hathras and Agra. The Congress workers are looking forward to Priyanka's presence. The Samajwadi Party too has extended its support to the yatra as well. कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को निमंत्रण मिला है शामिल होने का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सहमति भी दे दी है। इसमें समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे और न्याय यात्रा में हिस्सा लेके अपनी एकता की आवाज को मजबूत और बुलंद करेंगे। देखिए, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन पूरे देश के अंदर मिलने का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से देश के अंदर परिवर्तन तो आएगा। तो क्या प्रियंका जी भी शामिल हो रही हैं कल से? प्रियंका जी भी आएंगी। अच्छा, क्या रहेगा रूट, मतलब कैसे क्या रहेगा पूरा? नहीं, हम लोग यहाँ से अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल और संभल से फिर दिवाई के पास जाकर के नाइट स्टे होगा और नेक्स्ट डे अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा से निकलकर धौलपुर बॉर्डर तक जाएगा। But the Congress cannot ignore the crisis at hand. The Grand Old Party, which is facing voices of dissent from within. Salman Khurshid is not happy with the Farrukhabad seat going to Samajwadi Party, expressing his disgruntlement. Khurshid asked how many times he would have to prove his relationship on the constituency. Former Varanasi MP Rajesh Mishra claimed that the party allegedly surrendered to the Samajwadi Party. He asserted that the Congress doesn't have suitable candidates in most of the 17 seats that it has got from the Samajwadi Party. The UP Congress General Secretary, however, Chandan Chaudhary, has ruled out that Danish Ali, suspended BSP MP, will be fielded from Amroha. This is after Danish Ali said that he will participate today in Congress's yatra. कांग्रेस के पास पिछले 30 सालों से संगठन नहीं है, न बूथ पे कार्यकर्ता बचे हैं, न जिले में बड़े नेता हैं, वोट बैंक कोई कांग्रेस के पास बचा नहीं है। और आप चाहे पूरे प्रदेश के लोगों को जुटा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके पास जब संगठन नहीं रहे, आपके पास पब्लिक में वो मास लेवल पे फॉलोइंग नहीं बची है कांग्रेस की या संगठन की, तो आप चाहे जितना भीड़ कोशिश करिए पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाने की, भीड़ नहीं हो पाएगी। जो सीटें कांग्रेस मांग रही थी, जो कांग्रेस ने लिस्ट दी थी, वो सीटें तो हमें मुश्किल से लगता है 4, 5, 6 मिली है। जहां पे आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, वो सीट लेके आप क्या करेंगे? नहीं, अमरोहा से अभी कोई प्रत्याशी नहीं है। दानिश अली जी हमारी पार्टी में नहीं है अभी, और अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ऐसा रिपोर्ट्स आ रही कि दानिश अली जी जो है प्रत्याशी होंगे कांग्रेस? नहीं, दानिश अली हमारी पार्टी में नहीं है अभी। वो सब एक अफवाहें, रूमर्स पे ना जाए। संगठन काम करता है, संगठन अपनी रिपोर्टें देता है और इस तरह से कांग्रेस में टिकट्स नहीं होते हैं। ये अफवाहें, अफवाहों को आप ना मानें। Akansha with us on the phone line. Good morning, Akansha. What happens today in the yatra as far as Congress party is concerned? Well, today is the Bharat Nyaya Yatra, which is close to its end in Uttar Pradesh, and after a break of 2 days, today the yatra will traverse through western Uttar Pradesh. Start at around 10 a.m. from Moradabad and traverse through Sambhal, Aligarh, Hathras, Agra. The most important thing is that Right, we'll just come back to you, Akansha. We're losing that audio connection, but as far as we talk about the election strategist also, in this case is concerned, as we talk about Prashant Kishore, because very important when he has to say about the Congress Yatra. As far as Akhilesh Yadav also is concerned from the Samajwadi Party, now will be a part of this yatra because his presence, rather his absence, is something that has been questioned of long. But when we talk about the seat sharing, what has been happening between the two parties, because there are many leaders within the Congress who are miffed with the party leadership's decision. जहाँ तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है, जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की, उसका फ़ायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला, लेकिन उसी यात्रा का फ़ायदा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे राहुल गांधी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो चीज़
आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए। ये जो अभी यात्रा, सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है, इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पब्लिकली आज से महीने भर पहले शुरू किया कि जिस किसी ने भी इनको सुझाव दिया है इस यात्रा को करने के लिए, तो यात्रा की मेरिट, फॉर्मेट, इम्पैक्ट को छोड़ दीजिए, शेयर टाइमिंग जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया। तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो है नहीं। और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे, और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है उसका जो कमांडर इन चीफ है वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। नतीजा क्या होगा? पूरी आर्मी की स्ट्रेटजी, उनका काम करने का तरीका, वो सब गलत हो जाएगा। वही हो रहा है जब राहुल जी को, क्योंकि कांग्रेस वो चला रहे हैं, कांग्रेस के नेता वो हैं, इंडिया में कोई बड़े निर्णय हो नहीं सकते जब तक उनकी सहमति ना हो। तो जब उनको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए, सीटों के निगोशिएशन को तय करना चाहिए, नैरेटिव पे काम करना चाहिए, किनको टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगा इस पर तय करना है। ये ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। So first up, let's talk about the India bloc that has overcome a significant hurdle, that is seat sharing. The bone of contention that is gone, and how both the Congress and the Samajwadi Party plan to put up a joint show as far as Priyanka Gandhi Vadra being missing from this Congress's flagship yatra is likely today to join her brother Rahul in Moradabad. Akhilesh Yadav, however, maintains since the alliances have been staged and the seats have been distributed, he will attend the Nyaya Yatra in Agra on the 25th of Feb. All is well, they say, but there are still rumblings within the Congress over the deal over seat sharing. The Bharat Jodo that will commence from Moradabad and travel through Fatehpur Sikri via Amroha, Sambhal, Bulandshahr, Aligarh, Hathras and Agra. The Congress workers are looking forward to Priyanka's presence. The Samajwadi Party too has extended its support to the yatra as well. कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को निमंत्रण मिला है शामिल होने का, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सहमति भी दे दी है। इसमें समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे, और न्याय यात्रा में हिस्सा लेके अपनी एकता की आवाज को मजबूत और बुलंद करेंगे। देखिए, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन पूरे देश के अंदर मिलने का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से देश के अंदर परिवर्तन तो आएगा। तो क्या प्रियंका जी भी शामिल हो रही है कल से? प्रियंका जी भी आएंगी। क्या रहेगा रूट, मतलब कैसे क्या रहेगा पूरा? नहीं, हम लोग यहाँ से अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल, और संभल से फिर डिबाई के पास जाकर के नाइट स्टे होगा, और नेक्स्ट डे अलीगढ़, हाथरस होते हुए आगरा से निकलकर धौलपुर बॉर्डर तक जाएंगे। But the Congress cannot ignore the crisis at hand. The grand old party, which is facing voices of dissent from within. Salman Khurshid is not happy with the Farrukhabad seat going to Samajwadi Party, expressing his disgruntlement. Khurshid asked how many times he would have to prove his relationship on the constituency. Former Varanasi MP Rajesh Mishra claimed that the party allegedly surrendered to the Samajwadi Party. He asserted that the Congress doesn't have suitable candidates in most of the 17 seats that it has got from the Samajwadi Party. The UP Congress General Secretary, however, Chandan Chaudhary, has ruled out that Danish Ali, suspended BSP MP, will be fielded from Amroha. This is after Danish Ali said that he will participate today in Congress's yatra. कांग्रेस के पास पिछले 30 सालों से संगठन नहीं है, न बूथ पे कार्यकर्ता बचे हैं, न जिले में बड़े नेता हैं, वोट बैंक कोई कांग्रेस के पास बचा नहीं है। और आप चाहे पूरे प्रदेश के लोगों को जुटा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके पास जब संगठन नहीं रहे, आपके पास पब्लिक में वो मास लेवल पे फॉलोइंग नहीं बची है कांग्रेस की या संगठन की, तो आप चाहे जितना भीड़ कोशिश करिए पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाने की, भीड़ नहीं हो पाएगी। जो सीटें कांग्रेस मांग रही थी, जो कांग्रेस ने लिस्ट दी थी, वो सीटें तो हमें मुश्किल से लगता है 4, 5, 6 मिली है। जहां पे आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, वो सीट लेके आप क्या